Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Dear students, I am Professor Zahid Javed. We are going to start a series of lectures on first year chemistry. All these lectures are SLO based. That is, our focus is not just to teach you, but we require you to get knowledge, understand the concept, and apply it to where it is required. We're going to start with the chapter number 2. Chapter number 2 is atomic structure, and this is our lecture number 1. Lecture number 1 is about the subatomic particles and their relative masses and charges. This lecture is based on SLO that describe proton, neutrons, and electrons in terms of their relative charges and masses. यानी आपने इस लेक्चर से क्या समझना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके रिलेटिव चार्जेस और मैसेज से क्या मुराद है. So dear students, as you know that atom is the smallest particle of an element. Atom is the smallest particle of an element. Smallest particle of an element which retains its properties and takes part in a chemical reaction. There are two major parts of the atom. First is central nucleus. Nucleus contain two type of particles, which are proton and neutrons. This nucleus is surrounded by electrons which move in different shells. Protons are positive particles. They possess unit positive charge, whereas electrons are negatively charged particles. Electrons are negative. They possess unit negative charge, whereas neutrons, they are neutral in nature, that they possess no charge. Now, number of protons inside the nucleus is equal to the number of electrons outside the nucleus. Therefore, the total positive charge which is due to proton will be equal to total negative charge which is due to electrons. So as a result, atom as a whole is neutral. Atom as a whole is neutral. Now these particles, they are very small particles.
Now let's see what are their actual and relative masses and charges of these particles. Now first of all, let's see what are the actual masses of these particles. Actual masses. Mass of proton is equal to 1.67 into 10 raised power minus 27 kilogram. If mass of proton is compared to 1/12 of the mass of the carbon, then it comes to be 1.0073 AMU. AMU atomic mass unit. इसको 2 यूनिट्स में आप मेजर कर सकते हैं. In the units of kilogram, mass of proton is 1.67 into 10 raised power minus 27 kilogram. In the units of AMU atomic mass unit, it is 1.0073 AMU. Mass of neutron, it is slightly greater. ये 1.6726 आप इसको प्रोटॉन का mass अगर कंसिडर करें, then mass of neutron will be slightly greater, 1.6752 into 10 raised power minus 27 kilogram. In the units of AMU, it will be equal to 1.0083 AMU. Mass of electron is very small. It is equal to 9.108 into 10 raised power minus 31 kilogram, which is equivalent to 0.00055 AMU. जी बेटे, जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल, दीज आर वेरी स्मॉल मैसेज ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल. तो हम इनके एक्चुअल मैसेज के साथ साथ हम इनके रिलेटिव मैस भी कंसिडर करते हैं. रिलेटिव मैस के से मुराद ये है रेशियो ऑफ मैस ऑफ द वन पार्टिकल टू द मैस ऑफ अदर पार्टिकल. तो आप ये देखिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस तकरीबन इक्वल है. So ratio of mass of proton to the mass of neutron, it is approximately equal to 1. So relative mass of proton will be 1 and relative mass of neutron will also be 1. Relative mass of proton and neutron, they will be equal to 1. अब अगर आप प्रोटॉन के मैस और इलेक्ट्रॉन के मैस के दरमियान रेशो अगर आप मालूम करें, रेशो ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन टू द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे आप किलोग्राम से रेशियो निकाल लें या AMU से रेशियो निकाल लें, it is found to be approximately equal to 1836. क्या मतलब हुआ कि mass of proton is 1836 times heavier as compared to electron. That a proton is 1836 times heavier as compared to इलेक्ट्रॉन. या आप यूं कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन इज 1836 times lighter as compared to a proton. Therefore, relative masses of proton, neutron, and electron
can be summarized as proton, neutron, and electron. They can be summarized as relative mass of proton 1, relative mass of neutron 1, whereas electron is 1836 times as compared to that of proton as well as electron. So ratio between the mass of proton, neutron, electron is 1 by 1836. इसी तरह आप ये देखिए कि जो इन पार्टिकल के चार्जेस क्या हैं. Charges possessed by these particles of subatomic particles जी बेटा, charge on an electron is equal to 1.602 into 10 raised power minus 19 coulomb. Same is the charge possessed by proton, 1.602 into 10 raised power minus 19 coulomb. However, electron is negatively charged particle, proton is positive particle. जैसे मैंने आपको बताया कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, दोनों पे सेम चार्ज होता है, इसलिए एटम एज अ होल न्यूट्रल है. जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल इन नेचर हैं. तो इस तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्जेस के दरमियान जो है रेशो फाइंड करें, तो ये रेशो इनके रिलेटिव चार्जेस कहलाते हैं. सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, what will be the ratio between their charges. तो अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के दरमियान रेशियो फाइंड करें, तो ये क्योंकि इक्वल है, इट इज़ 1. सेम इज द रिलेटिव चार्ज पोजेस्ड बाय प्रोटॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन -1, प्रोटॉन +1, एंड देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि what do you mean by relative charges and masses of subatomic particles. जी बेटा, अब हम अपने इस लेक्चर का सेकंड पार्ट, विच इज बेस्ड ऑन द student learning outcome that describe the behavior of beam of protons, electrons and neutrons moving with the same velocity in an electric field. हमारे लेक्चर का ये पार्ट इस बात को कंफर्म करेगा कि प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल हैं. और ये लेक्चर जो है वो इस बात को भी प्रूव करेगा कि प्रोटॉन जो हैं दे आर हैवियर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स. तो बेटा सपोज कीजिएगा कि वी हैव अ सोर्स ऑफ पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. दिस इज a source of subatomic particles, source of proton, electrons
न्यूट्रॉन एट्सेट्रा। यानी ये सोर्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो अमिट कर सकता है, लेकिन ये तीनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली अमिट नहीं होंगे। यानी यूं कह लीजिए कि देयर विल बी थ्री डिफरेंट सोर्सेज which will be emitting proton, electron and neutron as a beam of radiation. किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में ये पार्टिकल्स स्टेट लाइन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों। ठीक है जी। यानी सपोज ये मैं इसको न्यूट्रॉन को अगर येलो पार्टिकल से ज़ाहिर करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन हैं ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। प्रोटॉन को अगर मैं ग्रीन पार्टिकल से ज़ाहिर करता हूँ तो ये प्रोटॉन भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करता हूँ इन पर्पल पार्टिकल से तो ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में। नाउ सपोज वी क्रिएट an electric field by placing two charge plates, positive above and negative below, in the path of these radiation consisting of proton, electron and neutron. What we observe कि अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो मौजूदगी में न्यूट्रॉन्स के मूवमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दे कंटिन्यू टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। इट मीन these particles are not deflected toward the positive plate or the negative plate. That is, they have no charges. They are neutral in nature. अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं विद अ लार्जर एंगल। दिस इज लार्जर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको एंगल अगर आप ए कह लीजिए जी। और अगर जो है वो प्रोटॉन्स को हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करें, प्रोटॉन की बीम को, तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोटॉन आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव पोल ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ स्मॉलर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको आप एंगल बी कह लीजिए। अब यहां पे ऑब्जर्व कीजिए कि एंगल ए, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater as compared to the angle of deflection of the protons. Protons ये नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव पोल की तरफ। ये डिफ्लेक्शन जो है वो क्या शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन आता नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन आता पॉजिटिव पार्टिकल। अब ये जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोटॉन। ये क्या शो करता है? इट शोज दैट electrons are lighter as compared to that of the proton। अब जस्ट अभी आप पढ़ चुके हैं कि electrons are 1836 times smaller or lighter as compared to the proton। Therefore, angle of deflection due to their less mass, angle of deflection of electron due to less mass toward the positive pole of applied electric field is greater as compared to that of electron, compared to that of electron। इलेक्ट्रॉन का जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये आप देख रहे हैं कि इट इज ग्रेटर as compared to that of proton। Reason is greater mass of proton as compared to that of electron। तो यहां पे हम ये कंक्लूड करेंगे कि
angle of deflection of the particles in the presence of electric field, angle of deflection of these particles, of these subatomic particles, subatomic particles is inversely proportional to the mass of the particles. अगर इनका चार्ज एक दूसरे से डिफरेंट होता तो ऐसी सूरत में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उसके चार्ज पर भी डिपेंड करता, यानी ऐसी सूरत में हमारे पास रिलेशनशिप यूं होती कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द charge on the particle, whereas it is inversely proportional to mass of the particle. So massive particle bend toward the negative plate with smaller angle, whereas lighter particle bend toward the positive plate with a wider or greater angle. तो जरा यहां पे आप सपोज कीजिएगा कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का सर्कुलर पाथ है, इसको अगर आप इस सर्कुलर पाथ को अगर आप एक रेडियस में कन्वर्ट, इसको आप कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट करके इसका रेडियस अगर ऑब्जर्व करें, ये रेडियस स्मॉलर है, और इसी तरह आप अगर इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट सर्कल में चेंज करें, इस सर्कुलर पाथ का आप रेडियस ऑब्जर्व करें, इट इज ग्रेटर, यानी लाइटर पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन द सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस, whereas heavier particles are deflected. These are the heavier particle proton. They are deflected in the circular path of greater radius. तो इस तरह आप ये कंक्लूड कीजिए कि रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन of the subatomic particle, that is proton and electron in electric field, is directly proportional to their mass of the particle, whereas it is inversely proportional to the charges on these particles. तो अगर एक पार्टिकल का मैस ज्यादा है तो वो उस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जैसे आप ये देख रहे हैं येलो पॉइंटर के जरिए कि वो एक ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस जो है वो ज़्यादा है, जबकि एक जो लाइटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन वो एक ऐसे सर्कुलर पाथ में जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ है जिसका रेडियस जो है वो कम है। तो इस तरह हमने इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया? फर्स्ट इज द नेचर ऑफ चार्जेस ऑन दिस पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, and neutrons are neutral in nature, and secondly protons are heavier as compared to the electrons. तो इस पे आपसे क्वेश्चन जो है वो यूं पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स which determine the deflection
subatomic particles to the positive toward the positive and negative plates of applied electric field. या आपसे क्वेश्चन जो है वो यूं भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ electrons, protons, and neutrons moving with same velocities in an electric field. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Zahid Javed. First year chemistry, this is our lecture number 2 from chapter number 2, atomic structure. And this lecture is about atomic number, mass number, and the determination of number of electron, proton, and neutron in an atom or ion. इस लेक्चर में आप ये लर्न करेंगे कि टर्म प्रोटॉन नंबर से क्या मुराद है और इसको एटॉमिक नंबर भी क्यों कहते हैं, यानी टर्म एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर ये सेम कंसेप्ट को जाहिर करते हैं। और इसके अलावा आप ये भी लर्न करेंगे कि न्यूक्लियन नंबर क्या होता है और उसको मैस नंबर क्यों कहते हैं, यानी ये दो टर्म भी सेम कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आप इसी लेक्चर में ये भी लर्न करेंगे कि अगर आपको एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया गया हो, मैस नंबर दिया गया हो और चार्ज ऑन द आयन दिया गया हो, तो आप उस एलिमेंट या आयन में नंबर ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो और न्यूट्रॉन आप कैसे मालूम कर सकेंगे। तो बेटे सपोज कीजिएगा कि आपके पास ये सोडियम का एटम है। सोडियम के एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं। न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज एटम ऑफ सोडियम। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। देयर आर प्रेजेंट 11 प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं। दिस इज नोन एज द प्रोटॉन नंबर। तो सोडियम का प्रोटॉन नंबर जो है ये क्या होगा, इट इज इक्वल टू 11। ये प्रोटॉन नंबर जो है ये एक एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है ये क्यों है, इसलिए कि तमाम एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे से डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। इस तरह हम एक एलिमेंट को उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर सोडियम के अंदर 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो मैग्नीशियम के अंदर जो है ये 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, एल्युमिनियम में 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक एलिमेंट के तमाम एटम्स के अंदर यानी उसके तमाम आइसोटोप में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होंगे। मिसाल के तौर पे आप हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं कि उसमें 3 किस्म के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स, दे आर प्रोटियम R1H1, deuterium R1H2 और ट्रीटियम इट इज़ 1H3। तो प्रोटियम में जो है वो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और ड्यूटियम में एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 2 न्यूट्रॉन है। ट्रीटियम में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 3 है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम फॉर all the atoms of an element, however their number of neutrons are different। तो इसलिए हम इस प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर भी कहेंगे। दिस इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर is the number of protons present inside the nucleus of an atom. It is represented by letter Z। तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एटॉमिक नंबर इज यूज टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। तमाम एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होता है। तो अब आप ये देखिए कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर न्यूक्लियन नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियर नंबर को हम लेटर ए से जाहिर करते हैं। सो लेटर ए, न्यूक्लियर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो मास है दिस इज नेग्लिजिबल। नहीं, टोटल मास ऑफ एटम इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसलिए हम न्यूक्लियन नंबर को मास नंबर भी कहते हैं। मास नंबर इसलिए कि एक एटम का जो मास है वो इन 2 पार्टिकल की वजह से होता है, दैट इज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टर्म है एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम है, तो इस तरह न्यूक्लियर नंबर और मास नंबर ये 2 टर्म भी सेम होंगी। तो अब हम ज़रा ब्रीफली देखते हैं कि ये एटॉमिक नंबर जो कि एक एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये कैसे डिस्कवर हुई। नो, atomic number was discovered by a scientist whose name is Henry Moseley। Henry Moseley। हेनरी मोसले ने एक एक्से ट्यूब के अंदर डिफरेंट मेटल्स को 1 बाय 1 एनोड के तौर पे यूज किया और उन पे हाई एनर्जी कैथोड रेज बम्बार्ड की। इस बम्बार्डमेंट के नतीजे में उस मेटल एनोड से एक्सरेज अमिट की हुई। उसने एक्सरेज की जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज से उसने उनकी फ्रीक्वेंसी मैयर की। उसने ऑब्जर्व किया कि इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और उस एटम के उस मेटल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है।
वो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या थी कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी was directly proportional to the number of protons present in the nucleus of the atom of that element। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ प्रोटॉन के दरमियान एक ग्राफ ड्रा किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। तो उससे इसने प्रूव किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एलिमेंट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और इसने उस नंबर ऑफ प्रोटॉन को बाद में इसको एटॉमिक नंबर का नाम दिया गया। इस एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जो पीरियोडिक टेबल है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया। प्रीवियसली पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर पीरियोडिक टेबल को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज किया जाए, अरेंज किया जाए, तो उसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसमें इनकन्सिस्टेंसीज हैं, उसमें तजादात पाए जाते हैं। तो अब अगर जो है वो एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट की बजाय उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया गया, तो ये तमाम डिस्क्रिपेंसीज जो हैं या इनकन्सिस्टेंसीज हैं ये ख़त्म हो गई। तो इस तरह जो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी ने जो पीरियोडिक टेबल को रीऑर्गेनाइज करने में और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में बहुत हेल्प की। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो इस लेक्चर का ख़त्म हुआ कि हमने ये स्टडी किया कि टर्म एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ये सेम कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और द टर्म मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर ये सेम कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि किसी एटम के अंदर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम कर सकते हैं अगर एटॉमिक नंबर दिया गया हो, मास नंबर दिया गया हो। सो डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ protons, electrons and neutrons in an atom। क्या दिया गया? इफ Z is given, यानी प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर इज गिवन, और मास नंबर जो है ये दो जो है वो जो नंबर्स हैं ये दिए गए हों, तो फिर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे मालूम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एटम जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन उसकी जी वैल्यू के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी। मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है। तो 12 जो है वो अगर जी की वैल्यू है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 12 होंगे। अब अगर सपोज मैग्नीशियम का मास नंबर आपको दिया गया है, मास नंबर ए फॉर मैग्नीशियम इज 24, तो 24 का मतलब है कि इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द nucleus of magnesium। So if A is equal to 24, तो अब हम इस A की वैल्यू या मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम कर सकते हैं। सो एज A इज इक्वल टू Z प्लस N, सो N will be equal to A minus Z। A is equal to 24 minus 12, so it is equal to 12 neutron।
अब एक न्यूट्रल एटम के अंदर जैसे मैग्नीशियम आप देख रहे हैं, एक एटम के अंदर यानी जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज ना किए हों, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी जी की वैल्यू के इक्वल होंगे, और इन केस ऑफ मैग्नीशियम ये भी 12 होंगे। तो इस तरह आप इस सिंपल रिलेशनशिप से किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं, अगर आपके पास जी की वैल्यू दी गई हो, अगर आपके पास ए की वैल्यू दी गई हो। अब हम देखते हैं कि किसी आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है। तो दो किस्म के हमारे पास आयन होते हैं। फर्स्ट इज द कैटायन। कैटायन इज द पॉजिटिव आयन। और ये पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? पॉजिटिव आयन उस वक्त बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मिसाल के तौर पे यही हम मैग्नीशियम की एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम, इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन हैं, इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस से बाहर जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो अब मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम रहेगी। देयर आर 12 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन्स। जबकि अब पहले शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। तो अब आप देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इसलिए अगर किसी आयन के लिए हमारे पास जी की वैल्यू दी गई हो, तो जी की वैल्यू उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को जाहिर करेगी, क्योंकि एक एटम में भी और एक आयन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम के केस में ये मैग्नीशियम जो है वो आयन है Mg+2, तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे दे विल बी इक्वल टू 12। ये +2 चार्ज क्यों आया है? इसलिए कि जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए गए, तो अब क्या हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो 12 प्रोटॉन की वजह से हैं। यानी न्यूक्लियस पे चार्ज +12 है, लेकिन बाहर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -10। तो इसलिए जो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, -10 चार्ज जो है, वो सिर्फ 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, जबकि 2 प्रोटॉन का चार्ज इम्बैलेंस रहेगा, जिसको हम मैग्नीशियम के सिंबल के ऊपर जो है वो लिखते हैं। अच्छा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हो गए। अब मैस नंबर जो है, सपोज ये 24 गिवन है, तो जब आप यहाँ देख रहे हैं कि कैटायन, सॉरी, ये एटम कैटायन में चेंज हुआ है, तो मैस नंबर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह हमने एक एटम में किए। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो इट विल बी 24 माइनस 12, इट इज इक्वल टू 12। अब आप देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
केटाइन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से लेस हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने का तरीका क्या है कि जी वैल्यू यानी प्रोटॉन नंबर में से आप चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर लास्ट। तो ये आप इसमें से माइनस कर लीजिए, जी की वैल्यू जो है वो 12 है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे, इट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन। यानी आप प्रोटॉन नंबर में से जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, जो चार्ज के इक्वल हैं, ये माइनस कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि अगर आपके पास एक नेगेटिव आयन है, सपोज आपके पास जो है वो फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, तो वो कैसे बनेगा? फ्लोरीन एटम में 9 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से बाहर 9 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अब क्या होगा कि इस एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, दैट इज 9 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उतने ही रहेंगे, 10 न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो अब बढ़ गई। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, हो जाएंगे। यानी पहले 7 थे, अब जो है वो 8 जो 8वां इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन किया, मैंने इसको येलो में शो कर देता हूं। तो ये फ्लोरीन एटम जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये किस में चेंज हो गया? ये फ्लोराइड आयन में चेंज हुआ। इसने जो है -1 चार्ज एक्वायर कर लिया, क्योंकि अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1। तो अब यहां पे देखिए कि सपोज अगर इस फ्लोराइड आयन के लिए अगर जी की वैल्यू जो है वो दी गई है इट इज़ 9, और अगर मैस नंबर जो है वो दिया गया है इट इज़ इक्वल टू 19, और अगर जो है वो इस पे जो है वो चार्ज की वैल्यू जो है, अगर चार्ज इस पे दिया गया है -1, तो अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कैसे मालूम कर सकेंगे? सो अगेन नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस इज इक्वल टू जी। क्योंकि एक आयन, जब एक आयन बनता है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज वाक़ई नहीं होती। तो सपोज ये 9 ही रहेंगे, और अगर मैस नंबर दिया गया है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू मैस नंबर माइनस वैल्यू ऑफ जी, इट विल बी इक्वल टू 19 माइनस 9, इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूट्रॉन। और अब एक नेगेटिव आयन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्लोराइड आयन या किसी भी नेगेटिव आयन में वो किसके इक्वल होंगे? ये अब नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे। सो इट विल बी इक्वल टू जी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? जी की वैल्यू जो है वो 9 है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1, सो इट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हमने इस आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये फाइंड कर लिए हैं। तो अब सपोज कीजिए, तो अब हम जो है वो एक और बात जो है वो ये डिस्कस करते हैं कि इन दो फार्मूलों की बजाय
हम एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to value of Z minus charge on the ion. चार्ज ऑन आयन. अब यहां पे जब आपने चार्ज ऑन द आयन लिखना है तो उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आपने शो करने होंगे. मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम आयन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, माइनस charge on the ion is equal to +2, so it will be equal to 10 electron. Or in the same way, number of electrons in fluoride ion जो है ये कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है, माइनस charge on the ion is equal to -1. So 9 minus -1, this is also equal to 10 electron. तो इस तरह स्टूडेंट्स हम किसी भी एटम में या किसी भी आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये डिटरमिन कर सकते हैं. और आखिर में एक और बात समझ लीजिए कि किसी भी एटम का कोई सिंबल दिया गया हो, ये सपोज ये सिंबल है M, तो उसके जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो है वो उसके एटॉमिक नंबर यानी Z को ज़ाहिर करेगा. इसका जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है ये इसके मैस नंबर को जो है वो जाहिर करता है, जबकि इसका जो लोअर राइट कॉर्नर जो है ये एटॉमिसिटी को जाहिर करता है, यानी नंबर ऑफ एटम, इट इज एटॉमिसिटी. जबकि अपर राइट कॉर्नर जो है वो इस पे चार्ज की वैल्यू को जाहिर करता है. तो मिसाल के तौर पे आपके पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 ये मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका मैस नंबर 24 है. और अगर मैग्नीशियम का आयन है Mg, तो इसमें चार्ज जो है वो अपर राइट कॉर्नर पे लिखा जाएगा. और सपोज आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो इसकी एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल के लोअर राइट कॉर्नर पर जो है वो लिखी जाएगी. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आपने ये लर्न किया कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम कॉन्सेप्ट को जाहिर करते हैं, और इसके अलावा ये न्यूक्लियर नंबर और मैस नंबर सेम कॉन्सेप्ट को जाहिर करते हैं. और इसके अलावा आपने ये लर्न किया कि आप किसी भी एटम या किसी भी पॉजिटिव या किसी भी नेगेटिव आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे डिटरमिन कर सकते हैं. ओके, गुड लक.